Little Buddy, we believe a great future begins with a great start. Every child's journey is precious, and we make sure it begins with joy. Our team of caring, passionate educators turns every day into an adventure filled with stories, colors, laughter, and endless possibilities. Here, it's not just about books and pencils. It's about exploring new ideas, painting bright dreams, building towers of imagination, and making friends who feel like family. Our play areas are safe havens where little hands and big dreams come together. Every activity is designed to spark curiosity, boost confidence, and inspire a lifelong love for learning. Parents, we know your child's safety is priceless. That's why we've built a secure, nurturing environment, so you can have peace of mind and your little one can grow fearlessly. At Little Buddy, every step, every smile, every aha moment is a leap towards a bright, beautiful future. Come, join the journey, because every little buddy deserves a big start. A very warm good evening to one and all present here. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार इंटरनेशनल ओपन फेडरेटिंग टूर्नामेंट गेस्ट श्री हरगोविंदर सिंह धालीवाल, IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ हैं भावेश सर, जो AICF के इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे बहुत बड़े सपोर्टिव हैं। सर, आपका भी अभिनंदन। हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह सर, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है। चेस का जो प्रमोशन आप देख रहे हैं, जहाँ भी चेस का इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सर के सपोर्ट से ही होता है, तो सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे साथ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री तनवीर सिंह सर। सर, आपका भी अभिनंदन। हमारे इस इवेंट के चीफ ऑर्बिटर श्री H दिनेश सर। सर, आपका भी अभिनंदन है। हमारे साथ पेयरिंग ऑफिसर हैं भास्कर सर। सर, वेलकम सर। DYSP अजय राय सर हमारे साथ हैं। सर, आपका भी अभिनंदन है। अब मैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन सर से निवेदन करूंगी, सर फूलों का गुलदस्ता DGP सर को देकर उनका अभिवादन करें। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। हमें तनवीर सर से निवेदन करूंगी, सर आप भावेश सर का स्वागत करें। मैं हमारे नेताजी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डायरेक्टर सर को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन करें। अब मैं हमारे तनवीर सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर वेलकम एड्रेस दें आज के इस वैलिडिटी फंक्शन। A very warm welcome to one and all present here, my dear distinguished guests on the dais, land of Andaman and Nicobar Islands.
I would like to express my gratitude towards our chief guest. We are deeply honored with your presence. Respected HGS Dhaliwal sir, who is the Director General of Andaman and Nicobar Police. And also we would like to make a special mention that sir has been awarded with the President's Medal very recently. So congratulations on the same. We would like to welcome Vikram sir, who is our Director Sports and Education, and without him and his help towards infrastructure and towards the Chess Association, chess wouldn't have come so far and this international tournament wouldn't have been possible today. We welcome Bhavesh sir from AICF, who is a very important person in the All India Chess Federation, who helps coordinate all the events and has been a key person in promoting chess in India. We welcome our arbiters Dinesh sir and Bhaskar sir, and on the dais Ajay sir for gracing this occasion. Today, as we celebrate this success of this international tournament, I hope all you winners and participants will take back good memories and cherish these memories of Andaman Islands. Today, it's because of ANCA that we have completed a milestone of having an international event in Andaman and Nicobar Island. And I wholeheartedly thank all the international players who have flown from miles and miles away to Andaman Islands to participate in this event. We appreciate your passion and dedication to the sport of chess. So let's not just celebrate the winners, celebrate the tournament, but also the passion and dedication of all esteemed players for chess. Today, it's ANCA's role, Andaman Nicobar Chess Association, which has helped groom young talent and nurtured them in the Andaman, and thus we see not a national event, which we have already done by the way, and it was big in numbers, and finally we see the closing of a successful international federated chess tournament today. So I thank one and all for coming down to Andaman. Hope you take back good memories. We look forward to having better and bigger events in the future. Thank you one and all, everyone present here. Thank you again. The event was started on 23rd of August and concluded on today, 28th August. We have with us our pairing officer. He will be going to present the arbiter report. And let me introduce Bhaskar sir, as he is the first coach of D. Gukesh, who is the world champion. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, respected players, parents, and other officials, arbiters, and volunteers. I am here to present you the tournament report of first Andaman Nicobar International Open Federated Chess Tournament. It started on 23rd of August. And today it is concluding. Tournament held with 9 rounds with a time control of 90 minutes plus 30 seconds increment from move number 1. We had 351 participants, 1 player from USA, 2 players from Sri Lanka and 1 from Nepal. So according to that, 4 federations happened. So I congratulate Andaman for having 4 federations. Total cash prize for the tournament was 7 lakhs. At the end of 9th round, Arush A of Kerala stood first, followed by Prashant J. Nayak of Karnataka. Sain Kumar of Bihar completed the podium. Andaman Chess Association has grown a lot, and they have conducted such a wonderful tournament with an international level standard. I wish them all the best and ask them to conduct lots of tournaments so that they can help players. Even in future they can conduct Grandmaster tournaments. Of course they have promised, so most players can come here for the next time. I thank my team of arbiters and volunteers who worked round the clock for the success of this tournament. Thank you all.
Thank you, sir. Sir, in this event we have 4 federations including India. So I would like to invite player from Sri Lanka to give a feedback. Actually, I was very thankful for inviting me for this Andaman and Nicobar International Tournament. So for the organizing committee, I am very thankful for that. And I have like 6 days in Andaman. It's very nice. The way you are, it means like for me it's like a wow. So and I'm congratulations for the Andaman and Nicobar Chess Association for your future also. Thank you. थैंक यू सर. एंड हमारे साथ इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा सर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. ये उनका पहला विजिट है हमारे इस आइलैंड में. ये जो है हमारे आज के जो इस इवेंट के टॉप सीडेड प्लेयर इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा सर हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच में बैठे सभी सम्मानित व्यक्तिगण, बच्चों, सभी चेस प्लेयर्स, पेरेंट्स और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं अंडमान एंड निकोबार चेस एसोसिएशन को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इस टूर्नामेंट को मैनेज किया. 350 खिलाड़ियों को मैनेज करना बहुत आसान नहीं था. इसमें आपकी आर्बिटर की टीम ने भी बहुत अच्छा रोल किया. और पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जो इतनी गर्मी में 8 घंटे बाहर बैठे रहे. बहुत आसान नहीं था पेरेंट्स के लिए भी. मुझे उम्मीद है आप आगे भी फ्यूचर में अच्छे टूर्नामेंट कराते रहेंगे. इस टूर्नामेंट में मैंने एक चीज़ गौर की, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं लोकल, शुरू के 6 मैचेस में पीछे की 5 रो बहुत जल्दी खाली हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होकर मैंने देखा रेस्ट डे के बाद सभी मैचेस जो है 1 घंटे की जगह 2-2 घंटे सब लोगों ने फाइट की. तो ये इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ के खिलाड़ियों में दिखा. तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग लोकल टूर्नामेंट खेलें और आपस में भी प्रैक्टिस मैसेज खेलिए, ताकि आगे आने वाले सालों में आप और अच्छा कर सकें और अंडमान एंड निकोबार का नाम आगे बढ़ाएं और देश का भी नाम आगे बढ़ाएं. थैंक यू वेरी मच. फीडबैक देना चाहता है वो आ जाए. Good evening, my name is Barnava Biswas. I am from Kolkata. In this tournament, I enjoyed a lot. In future, I will come here again. So nice of you, thank you. और कोई बोलना चाहेगा? जो प्लेयर्स, any feedbacks? उसमें और सुधार लाएंगे. थैंक यू सो मच. मैं अदिति श्रीवास्तव फ्रॉम मध्य प्रदेश. मैं एक चेस कोच भी हूँ और एक ऑर्बिटर भी हूँ, एंड मेरे डैड ऑर्गेनाइजर भी हैं. तो आई नो कि एक इवेंट को, इतने बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी टफ. बट डिस्पाइट ऑल ऑर्गेनाइजिंग टीम जो एसोसिएशन है यहाँ की, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया. हमारे ट्रांसपोर्ट से लेके एकोमोडेशन से लेके प्लेइंग हॉल तक. सो इट वॉज वेरी इंजॉयबल. थैंक यू सो मच. कोई सजेशंस? अब मैं हमारे भावेश सर से निवेदन करूंगी कि सर, भावेश सर से आपने पहले भी मुलाकात की है. वो हमारे जो पहले राउंड थे उसमें आए थे. भावेश सर जो हैं वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. तो इन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं. सर आप 2 शब्द कहिए. जोरदार तालियां भावेश सर के लिए. सर ऑल द वे फ्रॉम गुजरात. न्याय सुपर बिहार अतिथि विशेष, खिलाड़ी मित्रों, पेरेंट्स,
एक बार जोरदार अंडोबर निकोबार एसोसिएशन के लिए जोरदार तालियां से, क्योंकि ये इतनी बड़ी इवेंट आपके लिए की है और सभी फैसिलिटी मैंने पेरेंट्स को भी मिला है। तो ये इवेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो अंडोबर निकोबार एसोसिएशन और यहाँ के डायरेक्टर स्पोर्ट और जो मदद कर रहे हैं, यानी कि ये आपने देखा जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं कि अंडोबर निकोबार के खिलाड़ी आपके साथ खेलते हैं। ये जो सर ने बताया आईएम कि भाई वो पहले 5, 10, 15 मिनट में गेम खत्म करते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये गेम कैसे खेला जाता है, नेशनल कैसे खेला जाता है। तो ये जो टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी आपको दी है, तो ऐसे सर के लिए जोरदार तालियां के, जिसकी वजह से आप अपने घर से स्कूल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आपको खाली मंजिल हासिल करना है, नेशनल में नंबर लाके आपका एसोसिएशन का नाम बढ़ाना है। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि भाई आप चेस के साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और ये मैं एसोसिएशन को भी बोलता हूँ कि ऐसी टूर्नामेंट हर आप करते रहिए, यानी कि महीने में 2 महीने में ऐसे टूर्नामेंट करेंगे तो जरूर अंडोबर निकोबार का एसोसिएशन के जो नेशनल के अंदर नंबर आएगा और बच्चे अपने आप IM GM बनेंगे। और इंडिया के अंदर जो इतने बड़े अपने आपने देखा वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का, पूरी इंडिया की टीम तो कि इंडिया की, उसमें आपका नाम जुड़े और आप सब लोग एसोसिएशन का और गुजरात अंडोबर निकोबार का, मैं गुजरात का हूँ तो मेरे मुंह से गुजरात का नाम निकल ही जाता है। तो ऐसे ही आप अंडोबर निकोबार का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। हमारी जो अंडमान निकोबार पुलिस है, मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग हमेशा से वेरियस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस भी है। DGP कप की ओर से लास्ट ईयर भी हमने चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था पुलिस लाइन के ड्रिल हॉल में। बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू ANCA टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। मैं निवेदन करूँगी हमारे DGP सर से कि वो आए और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको आशीर्वाद दें। Officials of the chess administrations और especially I would say parents जिनकी contribution I always feel कि बच्चों से भी ज़्यादा रहती है, सिर्फ खेलना छोड़ के बाकी सब कुछ पेरेंट्स करते हैं। और ऑल दी यंग प्लेयर्स, मैं हैरान था कि अंडर 7 भी बच्चे यहाँ इस टूर्नामेंट में खेले एंड मेंबर्स फ्रॉम दी मीडिया टीम। नॉर्मली मैं ज़्यादा फंक्शन में जाता नहीं हूँ, बट जब मुझे पता चला कि ये पहला ही बार अंडमान में फेडरेटेड टूर्नामेंट हो रहा है और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है और इतना सक्सेसफुली इसको आयोजित किया गया है, तो आई थॉट इट इज़ आवर ड्यूटी टू एनकरेज इन वट एवर वे वी कैन। मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मेरा बेटा भी इंटरनेशनली कम्पीट करता है, तो आई नो इट इज़ वेरी वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग। और अंडमान वैसे भी रिमोट लोकेशन है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं दूर से चल के, तो लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम एंड ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली विक्रम एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैज बीन पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। इन्होंने जो स्कूलों में भी चेस को सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करके आगे जो किया है, आई थिंक अंडमान विल डू वेरी वेल इन फ्यूचर ऑल्सो। मिस्टर भवेश पटेल मुझे बता रहे थे कि 50,000 बच्चों में से लास्ट 3 साल में 1200 बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है फेडरेटिंग में वो अंडमान के बच्चों की है। तो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर देखा जाए तो 2.4% बनता है
और जबकि पॉपुलेशन वाइज अंडमान की पॉपुलेशन तो इवन 0.024% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी नहीं होगी। तो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ऑनलाइन भी आजकल chess.com पे मुझे पता लोग खेलते रहते हैं, और भी बड़ी सारी साइट्स हैं। तो बहुत कम हैंडीकैप है अगर आप रिमोट भी हैं, और ये एक अच्छी गेम है। नॉट ओनली डज डेवलपमेंटली बट ऑल्सो जो अक्सर चैलेंज होता है रिमोटनेस ऑफ लोकेशन का, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो हैंडीकैप इसमें बहुत कम है। एंड आई थिंक जो एक चीज़ कमी थी वो अच्छे टूर्नामेंट की थी, और इस साल ये जो फेडरेटेड टूर्नामेंट हुआ है इससे ये कभी भी आगे नहीं रहेगी। और जो बच्चों का एक्सपोजर हुआ है, जैसा कि बता रहे थे कि पहले दिन 1 घंटा मैच चल रहा था, दूसरे दिन 2 घंटे पहुंच गया। तो आई एम श्योर वेरी सून वी विल सी ग्रैंड मास्टर एंड क्लास प्लेयर्स कमिंग आउट फ्रॉम अंडमान्स। ऑलरेडी इंडियंस वर्ल्ड के टॉप में डी गुकेश हो, चाहे दूसरे प्रज्ञानंदा और वेरियस अदर प्लेयर्स, दे आर ऑलरेडी मेकिंग ह्यूज मार्क। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वेरी सून वी विल सी प्लेयर्स फ्रॉम अंडमान शाइनिंग एट अ वर्ल्ड स्टेज। And with this, I will once again compliment all the organizers for a great tournament hosted with huge success, and all the players who have put in so much effort. Wish you a very bright future in chess. Thank you. Now I request our chief guest and all the dignitaries to come forward to give the prizes to trophies to the winners. इसका नाम हम पहले अनाउंस करेंगे। 5th position in the open category goes to Bhosle Sriraj from Karnataka. 35,000 cash prize and a trophy is from Maharashtra. Bhosle Sriraj from Maharashtra, 35,000, a trophy and a certificate. Arun Anand SPK from Karnataka, 4th position. A big round of applause to all these players. They played very well. और इनके खेल से हमारे बच्चों को बहुत सीखने के लिए मिला। 40,000, a certificate and a trophy. Second runner-up of this tournament is Sinha Sudhir Kumar from Bihar. 50,000, a certificate and a trophy. जोरदार तालियां। सर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारा इस इवेंट में पूरे इंडिया से सारे स्टेट से लोग आए थे। And the first runner-up is Prashant J. Nayak from Karnataka. 70,000, a trophy and a certificate. तालियां बजनी चाहिए। And the champion of this tournament is Arush Hay. He is only under 13. He is the youngest. Under 13 category player. 1 lakh rupee, a trophy and a certificate. A big round of applause to Arush. Arush played very well. बहुत बढ़िया खेला है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आरुष के लिए। आरुष is an inspiration to all the players, seniors, juniors, सभी के लिए। I request all the top
for a group photograph. Sir, thank you so much, sir, for giving your valuable time. We're always grateful for that. जोरदार तालियां हमारे आज के चीफ गेस्ट के लिए. Tanish Raghavan from Tamil Nadu. He is also under 30. Tanish Raghavan, a big round of applause to Tanish Raghavan. A trophy and a certificate. 7th position goes to Abhijit Yu from Kerala. जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें जो वाउचर्स हैं उसको फिल करके आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा. पीछे बैक साइड में ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन करेंगे. 8th position goes to Peter and Faye. 9th position K. Dinesh Sharma. 'तालियां बजनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं. Mahindra Indrajit from Maharashtra. Srivastava Kushagra from Madhya Pradesh. 12th position, 11th position Srivastava Kushagra from Madhya Pradesh. 12th position Sarsha Becker. 11th position Kushagra Srivastava. 12th position Sarsha Becker from Kerala. 13th position Ashish Chaudhary. 13th position Ashish Chaudhary. 14th position Abhishek TM from Kerala. Ashish Chaudhary from Maharashtra. Abhishek TM from Kerala. Ashish Chaudhary from Maharashtra. Abhishek TM from Kerala, 14th position. Position Ashwath Narayan P from Tamil Nadu. 16th position Krishai Jain from West Bengal. 17th position Kirtika B from Telangana. 18th position Soumyajit Das. 18th position Soumyajit Das. तालियां बज नहीं रही है, बच्चों को एनकरेजमेंट कैसे मिलेगा? उन्होंने इतनी मेहनत की है. 7,000. 19th position Gopalakrishna Maheshwari from Uttar Pradesh. 7,000 rupees. Gopalakrishna Maheshwari.
position, Siddharth Mohan from Kerala. 7,000. First position goes to Saparia Ghosh. Saparia Ghosh from West Bengal. 6,000. Karan JP from Kerala. 22nd position goes to Karan JP from Kerala. तालियों में इतनी कंजूसी अच्छी नहीं लगी. Sumit Kumar MS from Karnataka. 23rd position, Sumit Kumar. Correct name is not there. Sumit Kumar, 23rd position. 24th position goes to Sandeep Santosh from Kerala. Sandeep Santosh from Kerala. 6,000 rupees. And 25th position goes to Adharva Preeti from Tamil Nadu. Adharva. Top 25 prizes are over. Now the category prizes. Category for below 1800. Third position goes to Manna Chiranjeev. Below 1800 category. Third position Manna Chiranjeev. From West Bengal, 9,500. Third position goes to for boys and Ritvik from Andaman Nicobar Island. A trophy. And Ritvik. And Ritvik from Andaman Island. Jotan Chale Ritvik के लिए एड्रेस है. ये सारे बच्चे हमारे फ्यूचर के ग्रैंड मास्टर हैं. Second position goes to Nuhan Siddiq with 3,000 plus trophy. Nuhan got here. Yes, a big round of applause for Nuhan. And first position goes to Kavya Chakravarti from Odisha. 3,500 plus trophy. And under 7 category. Under 9 boys. Vedant R from Andaman Nicobar Island, a trophy. Vedant got क्या है? Second position goes to Sargent Samuel, 3,000 plus trophy. Under 9 category. देखिए हमारे जूनियर्स कितने दौड़ के आ रहे हैं. फुल ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी आपके अंदर भी होनी चाहिए तालियों के लिए. तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. हमारे बच्चे कैसे खुश रहेंगे. First position goes to Jai Kishan alias P. Joshi. He is also from Andaman Nicobar Island. All 3 prizes goes to Andaman Nicobar Island. Under 9 category boys. Under 11 category boys. Third position goes to
goes to Ishan Bansali from Karnataka. 3,500 plus trophy. Under 13 boys, Tanish M from Andaman Nicobar Islands. A trophy. A big round of applause to Tanish. Second position goes to Aradhi Srivatsan from Telangana. A big round of applause to Srivatsan. ये बहुत दूर दूर से आए हैं हमारे बच्चे और इन्होंने बहुत मेहनत की है प्राइज जीतने के लिए. First position goes to Pranav Ganesh Prabhu from Tamil Nadu. Under 13, 3,500 plus trophy. अब हमारी बेटियों की बारी है. Under 7, third position Aradhya Poddar from Andaman Nicobar Island. Third position Aradhya Poddar from Andaman Nicobar Island and trophy. Second position Repata Aradhya Reddy from Telangana. तेलंगाना में जोरदार तालियां देखिए कितनी छोटी सी है. 3,000 plus trophy. S. Rudrani, first position S. Rudrani, again from Andaman Nicobar Island. 3,500 plus trophy. Under 9 category, third position goes to Ikshita Viswas. Third trophy. Ikshita third पे आई है. Second position Charlie D from Andaman Nicobar Island. 3,000 plus trophy. First position goes to Nakshatra Guptavalli from Karnataka. Nakshatra. Vanshika Rao T from Andaman Nicobar Island. Her trophy. Second position again Andaman Nicobar Island. Agrima Singh. 3,000 plus trophy. And first position goes to S. Bhavishya from Andaman Nicobar Island. 3,500 plus trophy. All the three prizes goes to Andaman Nicobar Island. हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं. Under 13 category for girls, Sahana Jai from Tamil Nadu, third position, her trophy. Sahana Jai. Hansika M from Puducherry, second position. 3,000 plus trophy. From Puducherry. G. Morning from Meghalaya. G. Morning. First position goes to G. Morning from Meghalaya. Jai Vigyam. G. Morning from Meghalaya. A big round of applause. 3,500 plus trophy. Best Andaman prize goes to Vishal Khanna. Vishal Khanna, 3,000 plus trophy.
Veteran category goes to Vishwanathan VN from Kerala. Vishwanathan VN, Best Veteran. He is the Secretary of Kerala Chess Association. A big round of applause for him. 3,000 plus trophy. Best Athlete category goes to Mahesh Kumar D from Andaman Nicobar Island. Mahesh Kumar D, 3,000 plus trophy. Mahesh, Best Athlete player. Best youngest girl, Kiranya R from Andaman Nicobar Island. R Kiranya. Best youngest. Best youngest boy is Lakshish Bala. लक्ष्य बढ़ रही है. Below 1500 category, third prize goes to Sachit Bala from Andaman Nicobar Island, 9,500. Sachit Bala. Below 1500. Second position goes to Sanjana G from Tamil Nadu, 11,000. Cash prize. Tejas Tiwari from Uttarakhand is first position. First position goes to Tejas Tiwari from Uttarakhand. Tejas के पापा 12,000 prize. Below 1500 category. Below 1600, Anil R from Andaman Nicobar Island, 9,500. Anil R from Andaman Nicobar Island, below 1600. Second position goes to Anton Amla Jenny from Tamil Nadu, 11,000. तालियां बजनी चाहिए. First position goes to Lalit B from Andaman Nicobar Island, 12,000. Lalit के लिए जोरदार तालियां. B Lalit. Secretary from Kerala Chess Association, Vishwanath sir, please आप स्टेज पे आ जाइए. Lalit B, below 1600. First position. Below 1700. Third position goes to Lokanda Rishikesh from Maharashtra, 9,500. Second position Dhani Deepak from Nepal, 11,000. Second position Dhani Deepak from Nepal. Dhani Deepak from Nepal. Treasure Meghalaya से treasure आए सर आप आ जाएं. First position goes to
9,500. Second position goes to Akash Tiwari from West Bengal, 11,000 rupees. And first position goes to Arya Ayush Umesh. बीजू सर, आप स्टेज पे आ जाए। आर्या आयुष उमेश, महाराष्ट्र, फर्स्ट पोजीशन, 12,000। हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनके लिए हमने मोमेंटोज हमारी तरफ से हम दे रहे हैं ताकि उन्हें हमेशा अंडमान की याद आती रहे और जब भी टूर्नामेंट हो तो वो अंडमान आते रहे। तो प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका, a small token of love from the entire Anka family. जोरदार तालियां श्रीलंका प्लेयर के लिए। प्लेयर फ्रॉम नेपाल, दीपक के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच एक ही इंटरनेशनल मास्टर है, दिनेश शर्मा सर, आप स्टेज पे आ जाए। सर, टोकन ऑफ लव फ्रॉम द एंटायर एंका फैमिली। तनवीर सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन, इज प्रेजेंटिंग मोमेंटो। जोरदार तालियां के लिए। जो इंटरनेशनल मैच हुआ फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने बड़ा जो हुआ है, तो लगभग 350 से भी ज़्यादा लोग हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर 350 बच्चे आए और 3 फेडरेशन यानी नेपाल, फिर यूए और श्रीलंका से और गुजरात इंडिया से, ऐसे 4 फेडरेशन से ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट अंडमान निकोबार टूर्नामेंट एक ख़त्म हुई और बढ़िया व्यवस्था की थी अंडमान निकोबार एसोसिएशन ने प्लेयर के लिए। तो बढ़िया व्यवस्था थी, ऐसी अकोमोडेशन सब कुछ, और पेरेंट्स के लिए भी खास करके उन्होंने व्यवस्था की थी और चाय कॉफ़ी ये पूरा सिस्टम से किया था। यानी ये टूर्नामेंट नेशनल को भी टक्कर मारे ऐसी टूर्नामेंट किया था और बहुत बहुत सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट किया अंडमान निकोबार ने। उसकी वजह से मैं ऑल इंडिया की ओर से अंडमान निकोबार को धन्यवाद देता हूँ और ऐसी टूर्नामेंटें बढ़िया करते रहे और थैंक यू वेरी मच। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, सारे पेरेंट्स, पार्टिसिपेंट्स जो टाइम निकाल के इंटरनेशनल फेडरेटेड टूर्नामेंट में आए, जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सहयोग रहा, हमारी अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का काफ़ी सहयोग रहा कि हम सक्सेसफुली ये इवेंट 350 प्लेयर, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक 22 स्टेट से प्लेयर पार्टिसिपेशन रही। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। पिछली बार हमने नेशनल कराया था, ये बार इंटरनेशनल इवेंट हुआ है। तो एक नया माइलस्टोन वापस अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने अचीव किया है। तो मैं आप लोग सबके सपोर्ट का, पेरेंट्स के धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमने सिर्फ विनर्स के सक्सेस को ही सेलिब्रेट नहीं किया है, बट हर पार्टिसिपेंट के डेडिकेशन और पैशन
को सेलिब्रेट किया है इस चेस के द्वारा। अंडमान में ये चेस टूर्नामेंट जो हुआ है ये पूरे देश में दिखाया जाएगा, और ये सिर्फ एक चेस के लिए नहीं, स्पोर्ट ही नहीं, एक चेस टूरिज्म की भी शुरुआत है कि अंडमान भी ग्लोबल मैप में चेस के लिए है। और मैं आपको वापस से ये बताना चाहूँगा कि अंडमान जो हमारा यूटी है उसमें जो रेशियो ऑफ रजिस्टर्ड प्लेयर्स इज द हाईएस्ट इन इंडिया। तो 1200 प्लेयर्स आर रजिस्टर्ड आउट ऑफ 50,000 टोटल रजिस्टर्ड प्लेयर्स इन इंडिया। सो वी आर द हाईएस्ट, एंड दिस हैज ओनली बीन पॉसिबल क्योंकि अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने लास्ट 10 साल में जितने कोचिंग कैंप्स, जितने टूर्नामेंट्स कराए हैं, उन्होंने चेस के गेम के लिए ग्रूम किया है। तो अगेन टू ऑल द प्लेयर्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेट। तो सर इस पर आपका टोटल लगभग 300 प्लेयर, तो क्या फ्यूचर में वैसे ज़्यादा अधिक प्लेयर भी आप करने की कुछ सोच रहे हैं? यस डेफिनेटली, जितना पब्लिसिटी होएगा उतने प्लेयर बढ़ते रहेंगे, और आप देखोगे अधिकतर पार्टिसिपेशन अंडमान की भी थी। तो अगले साल आप देखोगे कोचिंग के बाद, जो हम लोग एनका कोचिंग भी कराते हैं, तो कोचिंग के बाद और प्लेयर्स रजिस्टर्ड होंगे। ऐसे ही हम लोग हाईएस्ट इन द कंट्री एज पर पॉपुलेशन, ये आपका बढ़ता ही जाएगा क्योंकि एनका फुल जोर शोर से चेस करिकुलम चला रहा है, चेस कोचिंग चल रहा है, और रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने करिकुलम में भी चेस को ऐड कर दिया है, और उनका ये भी सुविधा शायद प्रोवाइड करें। एनका बात कर रही है कि जो प्लेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपना रेटिंग खुलवाने के लिए, खैर उसकी फीस 300 रुपये है, तो वो भी प्रॉब्ली एनका या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग एक्सटेंड कराने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं। आपका स्वागत है इस क्लोजिंग सेरेमनी में। अंडमान एंड निकोबार इंटरनेशनल ओपन फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट, जो कि ये पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इवन जितने भी हमारे पेरेंट्स बाहर से आए हैं, प्लेयर्स बाहर से आए हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक था और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था इस इवेंट के लिए। हम लोगों को एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बड़ा हॉल नहीं है सभी प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैंने बाहर से, इवन ये टूर्नामेंट खेलने के लिए रिकमेंडेशंस हमें आते थे बड़े बड़े लोगों से, बाहर स्टेट से। तो इससे पता चल रहा है कि ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल है हुआ है, और चेस के लिए और अंडमान एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके लिए भी सबके नज़र में है, और यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं लोग। और एक चेस टूरिज़्म, चेस एज वेल एज यहाँ पे लोग आए डिफरेंट प्लेसेस में विजिट करें, ऐसे कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे, जिसमें टूर्नामेंट भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पे लोकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए जो भी प्लेयर्स आते हैं उनको भी जो है हम लोग मौका देंगे। तो आपके माध्यम से मैं पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे CS सर इन जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्लेयर्स आए हैं इन सभी के लिए जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। एक दिन का जो टूर था इनका, लोकल प्लेसेस विजिट करना था, तो उसके लिए CS सर जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे लोकल प्लेसेस विजिट करने के लिए इनको ये अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं CS सर और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सपोर्ट और उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ने सोचा कि 300 के आसपास एंट्रीज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, लेकिन इतने एंट्रीज हमें कॉल आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ये मोर देन 650 एंट्रीज हो जाती। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जैसे कि एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो जाए, ताकि एक हॉल में कम से कम 1500 to 100 प्लेयर्स जो है एक ही साथ खेल सके, क्योंकि चेस, नॉट ओनली चेस, बाकी जितने भी अदर गेम्स हैं उसको भी जो है हम लोग एक शेड के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम जो है उनको करा सकेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और इसके लिए हमारे MP साहब भी हाल ही में हमें सपोर्ट करने की घोषणा की है, और MP लैड फंड से एक हॉल बनाने की जो पहल उन्होंने किया है, होपफुली एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से वो भी संभव हो पाएगा। और मैं सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस टूर्नामेंट में भाग लिया, उन सबको जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसको सक्सेसफुली बनाने के लिए। और जितने भी आर्बिटर्स मेनलैंड से आए हैं इस इवेंट कंडक्ट करने के लिए, लाइक भास्कर, प्रशांत फ्रॉम गुजरात, जूली फ्रॉम महाराष्ट्र, आगम फ्रॉम अगेन सूरत,
जितने भी आर्बिटर्स आए हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इवेंट को सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया और हमारे लिए एक माइलस्टोन रहा ये। और हम आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट और जितने भी यहाँ पे हमारे लोकल स्पॉन्सर्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनके सपोर्ट से एक GM लेवल के टूर्नामेंट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और सबका सपोर्ट रहा तो वो भी यहाँ पे संभव होगा। थैंक यू।